ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 45%। ਦੇਖੋ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਰਫਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਗਰੋਥ ਆਈ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ, ਕਲਸਟਰਸ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਗਰੋਥ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਐਫਆਈ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਐਫਆਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 10% ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 90% ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ 4-5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਫਿਰ ਵੀ 50% ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝੇਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਸਮ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ। ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਆਸ ਕਲਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਬਈ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਲ EMPLOYEES ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਰਪਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਐਫਆਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਯੂ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਯੂ ਆਰ ਸੀਨੀਅਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਵਿਲ ਆਈ ਸੇ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਬੌਸ ਲਾਈਕਸ ਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੰਨੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਰੈਵਲਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ। Center has made a push with the states for effective implementation and monitoring of rural road development. So how this will play an effective role in holistic rural development approach? प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना एक बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। ये गांव के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसका पर्पस ये था कि ऑल वेदर पक्की सड़कें हर गांव तक पहुंचे। हमारा पंजाब भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। अब होता क्या है कि कई बार कई स्टेट गवर्नमेंट्स में वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट होती है, तो आईएएस जो ब्यूरोक्रेसी हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ऐसे डिसीजन ले लेती हैं कि जो उस प्रोजेक्ट के पैसे हैं वो कहीं और डिप्लॉय कर देते हैं। लेट्स से कि एक सरकार ने 10 महीने से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है और हर रोज़ धरने हो रहे हैं और वो धरने मीडिया में कवर हो रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो बड़ा प्रेशर होता है उन सरकारों पे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे आए होते हैं उनसे वो सैलरियाँ दे देते हैं। कई सरकारें तो इससे भी बदतर रही हैं। मैं अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूं, मीडिया कैंपेन शुरू कर देती हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, विच इज़ अ शेयर वेस्टेज, कि आप अपनी सरकार के इनिशिएटिव ऑलरेडी डेट में फंसे हुए हो और जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की ग्रोथ या सैलरीज में लगना चाहिए वो सारे पैसे की आप मीडिया कैंपेन कर रहे हो। आज काफ़ी स्टेट्स ने ऐसा किया, तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ रही है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और एक तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो अगर ये पैसा फोकस होकर चलेगा तो जो गांव है उनको शहरों से जोड़ना बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि गांव के प्रोडक्ट के लिए शहर मार्केट है और शहर के लिए गांव मार्केट्स हैं। जब उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जो गांव के किसी भी, चाहे किसान हैं, चाहे वो आप हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, चाहे वो अलग अलग रोज़गार से जुड़े हैं, वो अपनी सर्विसेज सिटी तक लेके जा सकते हैं या सिटी से कुछ प्रोडक्ट लाके एंटरप्रेन्योर अपने गांव में वो चीज़ें ला सकते हैं। तो ये सड़क ही तो हमें आपस में जोड़ेगी। अब गांव से शहर तक फ्लाइट तो चलेगी नहीं, हेलीकॉप्टर से तो माल आएगा जाएगा नहीं, तो ये सड़कें हमारी वेन्स हैं, हमारे देश की इकोनॉमी की वेन्स हैं। इसी के थ्रू जो ब्लड है, जो हमारी पूरी डेवलपमेंट है होनी है, उन वेन्स के थ्रू होनी है। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है और इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकारों को बिल्कुल ही उनकी अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। Sir, RBI is really confident that robust reserves will handle adverse global spread or repercussions. देखो, अपार्ट फ्रॉम आरबीआई का कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है मिसप्लेस नहीं है। आज की डेट में ज़माना इतना बदल गया है कि जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट है सिर्फ कंट्री वाइज ही अलग नहीं होता, आजकल तो पिन कोड वाइज भी अलग इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी की चेंजेस का। सेक्टर 8 चंडीगढ़ के लोगों पे जो इकोनॉमी का या स्लो डाउन का असर आएगा वो सेक्टर 45 के लोगों पे अलग तरीके से आएगा। हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। इंडिया फॉर्चुनेटली जो पिछले कुछ टाइमों में हमने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, जो पॉलिसी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसके कारण इंडिया एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। ये जो इस वक्त इकोनॉमिक चर्न हो रहा है, जो इम्पैक्ट आ रही हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, कोविड के कारण जो भी असर हुए हैं, इंडिया बड़ी अच्छी पोजीशन पे है उसको हैंडल करने के लिए। और इसके अलावा जो हमने इंटरनेशनल टाइप्स किए हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, वो इंडिया को बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट भी देगा। हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट काफ़ी रोबस्ट है। $400 बिलियन का हमने पिछली बार टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लिया, बिफोर टाइम अचीव कर लिया। इसको हम और बढ़ाएं। और थोड़ा सा सेकेंडली अब हमने हमारे जो टेक्नोलॉजी है, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमने एक बार ये कवर किया था कि 10-11 गुना बढ़ चुके हुए हैं। तो इस तरह से स्लोली वी आर ग्रोइंग, वी आर मेकिंग आवर इकोनॉमी रोबोस्ट। अब सेकेंडली एक और चीज़ जो हो रही है कि जो सप्लाई चेन्स है, जो चाइना डिपेंडेंट थी, आज इंडिया एक प्राइम पोजीशन में है। आप देखिएगा अगले 2-3 सालों में हम इन सब जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉलिसीज़, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम्स किए हैं, जो हमारे बजट में जो हमने टैक्स भरे हैं, जिसके कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा की है, 2-3 सालों में हमें उसके रिटर्न बहुत स्ट्रांगली नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और आज उसी का नतीजा है कि उस हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्ट और हार्ड पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आज हम ये जो स्ट्रॉम सब देशों की तरफ आ रहा है, हम इसको बेटर झेल पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके हमारे को भी इसका इम्पैक्ट, हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हैं, हमें भी डाउनवर्ड रिवीजन करनी पड़ेगी। पर अगर आप महंगाई देख लो, चाहे डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी देख लो, डाउनवर्ड इम्पैक्ट तो आया है, पर बाकी देशों के कंपैरिजन में वी आर डूइंग लॉट बेटर।
तो आरबीआई के इस कॉन्फिडेंस बिल्कुल जायज़ है, और अगर हम इसी रास्ते पे और एक अच्छे तरीके से चलते रहें, अपने टैक्स टाइमली पे करते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहे, तो वी वुड बी वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोब सूनर देन लेटर। सर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बातचीत के दौरान थैंक किया है, धन्यवाद किया है इंडिया का, जो असिस्टेंस उन्होंने या हेल्प जो उन्होंने दी है इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। देखो, इंडिया एज अ मेजर पावर, इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा एक कल्चरल धरोहर रही है कि हम पूरे ग्लोबल वेल बीइंग में विश्वास रखते हैं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ मेजर पावर कि हमारे आसपास की इकोनॉमीज़ को हम अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएँ, वहाँ पे शांति हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है। एंड वी आर हैप्पी कि हमारे नेबर्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिया का हेजेमोनिक माइंडसेट नहीं है, अनलाइक चाइना। वो डेट ट्रैप में, उनकी डेट ट्रैप पॉलिसी है, वो छोटे छोटे देशों को अपने डेट में फंसा के उनके की इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने इनको दबा के रखना है। इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल ऑपोजिट है कि हमने अपने नेबर्स को एम्पावर करना है, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन रखने हैं, और यही चीज़ें फ्यूचर में काम आएंगी। अब जब कल को सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन होगी, जब प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, तो इन देशों के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने आप इंडिया को फेवर करना शुरू करेंगे विज़ाविस चाइना। तो यही हमारी एक इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ही श्रीलंका की हेल्प करती आई है, और आज एक नए विगर से, अभी प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले एक भाषण में बोला था कि जो मैं इंडिया के लिए चाहता हूँ मैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी चाहता हूँ, वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट, और ये बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है। तो आई होप कि श्रीलंका, और वहाँ के बहुत ही प्यारे लोग हैं, उनके क्रिकेटर हमारे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं, और वो इस क्राइसिस से निकले। वहाँ पे जो अनरेस्ट है, जो कुछ परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स के कारण, कुछ लोगों के कुछ फैमिलीज़ के लालच के कारण, जो वहाँ पे आज पूरे देश को जो मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, जो वहाँ के यूथ को, पुअर लोगों को, वहाँ के बुज़ुर्गों को जो मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, वो जल्दी उससे निकलें और फिर से एक समृद्ध नेशन बने, और भारत हमेशा उनका साथ देने को तैयार है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला है, उस जजमेंट पे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कमेंट किया है, ट्वीट किया है उसके अगेंस्ट, वो कमेंट्स जो हैं अनएक्सेप्टेबल है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आई टोटली एग्री विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल टुडे। हालांकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम एरोगेंट हो गए हैं, और मैं ये मानूंगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो गए अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, वो उस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज़ की, उनकी एक ह्यूमन राइट्स का एक उनका परमानेंट एक कमेटी है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि यासीन मलिक इज़ अ फ्रीडम फाइटर, और कश्मीरी राइट्स के ऊपर उन्होंने मल्टीपल ट्वीट्स किए हैं। और मैं हैरान होता हूँ, मतलब कि हिपोक्रेसी की हाइट होती है कि ये सारी कंट्रीज़ में, ज़्यादातर देशों में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, राइट, पहले तो ये अपनी ही उस पर बात कर लें, इस कंट्रीज़ में हैं कौन कौन मेंबर। सऊदी अरेबिया, वन ऑफ द बिगेस्ट परपेट्रेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ के लोगों के, स्पेशली वुमेन के पास कोई राइट्स नहीं है। पाकिस्तान, टेररिस्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस तरह की कंट्रीज़ तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं, और वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं। एक टेररिस्ट, इंडिया का लीगल सिस्टम इज़ वर्ल्ड रिनाउंड फॉर इट्स फेयरनेस। मेरे को अभी तक याद है, आई यूज्ड टू वर्क इन सिंगापुर, तो मेरे बॉस एक चाइनीज़ थे, वो कहते थे कि चाइनीज़ कोर्ट्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी का साथ देंगे, वहाँ पे फेयरनेस नहीं है। पर इंडिया के कोर्ट्स बिल्कुल फेयर हैं, बिल्कुल सही चीज़ होगी, एंड दैट गिव्स अ सस्टेनेबल एज टू इंडिया, बिल्कुल प्रॉपर ट्रायल के अंडर, और उस आदमी ने अपने गुनाह कबूले, राइट। और वो कह रहे हैं कि मैं सारे अपने इल्ज़ाम मानता हूँ, मैं बाद में गांधीयन बन गया। अब वो गांधी का नाम ले रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो जब वो खुद अपने गुनाह कबूल कर रहा है कि भाई मैंने लोगों को मारा है, आईएएस एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को उसने मारा है, वो खुद कबूल करता है कि बाद में मैं गांधीयन, तो क्या पुरानी गलतियों के लिए उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? और उसके बाद वो गांधीयन नहीं बने। मैं पता नहीं वो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे या किसी और गांधी फैमिली की बात कर रहे थे। उसके बाद वो उनको प्रमोशन मिल गई, उसके बाद वो मनी हैंडलर बन गए कि तुमने पैसा मैनेज करना है। पहले ऑन ग्राउंड वो थे, उसके बाद प्रमोशन होगी उनकी उसी हायरार्की में, जो एक्सट्रीमिस्ट की जो एंटी इंडिया लॉबी थी ना, उसमें उनकी प्रमोशन हुई है बस। उसके बाद वो पैसे लेते थे, उसमें से कुछ पैसे रखते थे और अनरेस्ट कराते थे, पत्थरावबाजी करवाते थे, ये काम करते थे। ये कौन से गांधी करवाते हैं मेरे को नहीं पता, महात्मा गांधी तो नहीं ये करवाते थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है,
और फिर भी जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, उसकी सपोर्ट में ये लिखना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को शोभा नहीं देता है। और उनकी जो सज़ा मिली है, पॉपुलर व्यू तो ये है वो कम है, बट ये इंडियन कोर्ट्स की फेयरनेस है कि हम चाहे आदमी के जो भी जुर्म हो, हम एज पर लॉ ही चलेंगे। और आप देखिए मल्टीपल लाइफ टर्म्स हैं, वो भी कॉन्करेंट चल रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स और भी इंक्वायरीज हो रही हैं। और इसके अलावा आप अगर हम अभी हमने रेत माफिया की बात कर रहे थे कि रेत माफिया की भी एक विल पावर है, वो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और उनका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज भारत ने 370 हटा के एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जो दुश्मन है वो चुपचाप अब अपने घर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो हमारी विल पावर, हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करेगा जी। वो टेस्ट करेगा कि हम क्या करते हैं। वो अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ाएगा इसको बदनाम करने के लिए कि धारा 370 हटाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आज इंडियन जो विल पावर है, जो इंडियन मैंडेट है, जो हमारी गवर्नमेंट की, हमारे लोगों की विल पावर है, उसके आगे वो टिक नहीं पाएंगे। आज आप देखिए पिछले 3 दिनों में 10 अल्ट्रास को न्यूट्रलाइज किया गया। उन्होंने जो एक कश्मीरी एक्ट्रेस को गोली मार दी गई, जिसने गोली मारी उसको दूसरे दिन के अंदर अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया गया, राइट। तो आज गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिवली कश्मीर को इंटीग्रेट करने में लगी हुई है। सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जिनके पर्सनल लालच की वजह से और पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से पूरी की पूरी जनरेशन का माइंड वॉश कर दिया गया। उनको ग्रोथ और एजुकेशन से हटा के ऐसे एक्सट्रीमिस्ट व्यूज की तरफ जाया गया। तो इस जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को इस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत है। और OIC अपने लोगों का भला इसी में करेगी कि उनको वो अपने देशों से एक्सट्रीमिज्म हटा के सबकी ग्रोथ और वेल बीइंग की तरफ वो फोकस करें। सर, एक खबर सामने आ रही है कि एक IS कपल जो है वो स्टेडियम से एथलीट्स को बाहर निकाल देते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने डॉग्स को वॉक कराना है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंस है, मनमानियां हैं, VIP कल्चर पंजाब में ख़त्म करने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये VIP कल्चर कैसे ख़त्म होगा? देखो, ये VIP कल्चर ख़त्म होगा जब हम अपने जो आम पब्लिक है, राइट, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट लानी होगी। ये सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किसने शुरू की? अंग्रेज़ों ने, राइट। ये जब तक हमारा अभी भी ना माइंड कॉलोनाइज्ड है, हमें अभी भी लगता है कि हम गुलाम हैं, एक सरकार की जगह दूसरी सरकार आ गई है। तो हमें पहले तो अपनी रूट्स को, जो अपने अंदर की मानसिक गुलामी है, उससे हटना पड़ेगा। हमें अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को, अपने ट्रेडिशंस को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो गलत हो रही है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो जागरूक जनता ही इस कल्चर को ख़त्म कर सकती है, वरना जिसको प्रिविलेजेस मिलेंगी, आप जितनी स्पेस देते रहोगे उसका मिसयूज़ करते रहेंगे। और आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट ने उस कपल को, IAS अफसर्स को, एक को अरुणाचल प्रदेश और एक को लद्दाख में ट्रांसफ़र कर दिया है एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। तो इसके अलावा और क्या एक्शन होना चाहिए? आप देखिए कि एथलीट्स जो अपनी पूरी लाइफ का खून पसीना बहाते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाए कि जो स्टेडियम बना ही उनकी प्रैक्टिस के लिए है कि वो अपना कुत्ता घुमा पाए। ये हाइट ऑफ एरोगेंस है। ये बताता है हमारी मानसिकता, हमारी सोसाइटी की, हम अभी भी उस मानसिकता से निकले नहीं है, पर एटलीस्ट आज वो क्वेश्चन हमने पूछने शुरू कर दिए। जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप कोई भी IAS ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, वो अपनी पावर को मिसयूज करते हुए 100 बार सोचेगा। एंड आई होप कि हमारा देश उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि जहाँ पे हर एक व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो अपने कल्चर को पहचानता है। और देखो, हमें अपने यूथ को अपने ग्लोरियस पास्ट की, अपने कल्चर की नॉलेज देनी पड़ेगी। आप बच्चों को सिर्फ साइंस पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, पर आप उनको कल्चरल वैल्यूज़ भी पढ़ाओ, तभी हम ये जो मानसिकता है इससे निकल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर, परसेप्टिव इंडीड। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे जी नए मुद्दों के सही विश्लेषण के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने सुझाव जरूर दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। वील वेट फॉर योर सजेशंस। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। थैंक यू।